Hello बच्चों, myself Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. Students, I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Students, we are doing organic chemistry and it's the some basic principles and techniques of class 11th and its lecture 2nd. Students, our today's subtopics are shapes of simple molecules, characteristic features of pi bond, then effect of hybridization on the bond length and bond strength beta. So let's start with the first subtopic, that is the shapes of the simple organic molecules. बच्चों, जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, मीन्स वट एवर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर देयर, अगर हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है तो बेटा वी मस्ट नो द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. क्यों? क्योंकि इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेस पे वी कैन इजिली प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सो बेटा, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. सो बच्चों, just to explain these structures of the organic molecules, we must know the electronic concept of the valency and then the concept of hybridization. Although बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में हमने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया है. सो बच्चों, on the basis of hybridization, we can predict the geometry of the molecule. Let's take the case of methane molecule first of all. कार्बन जो है, that is the central atom in methane molecule, that is CH4 molecule. बच्चों, मीथेन मॉलिक्यूल में जो कार्बन है आपका, that is the central atom, and since 4 hydrogen atoms are attached to this, so it means it is going to form the 4 bonds with this carbon. So beta, and these 4 bonds are directed towards the ends of the regular tetrahedron that we have discussed in the last lecture, that is first lecture. But let's discuss further beta. Ground state configuration of the carbon, that is 1s2, 2s2, 2p2. So beta, in the valence shell there are your 4 electrons, that is your second shell is the valence shell over here, and excited state electronic configuration जो है कार्बन की, that is a 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1, because beta one of the electron will excite from s orbital to the vacant p orbital. एक इलेक्ट्रॉन बेटा s ऑर्बिटल से चला जाएगा p ऑर्बिटल में, एंड नाउ एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? यहां 1, और 2px में भी 1 है, 2py में भी 1 है, और 2pz में भी 1 है. नाउ बेटा दिस कार्बन बच्चों, दैट इज हैविंग दीज 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स which will intermix together to give sp3 hybridization beta. So we can say जो आपका सेंट्रल एटम है मीथेन में, क्लियर, that possess sp3 hybridization beta. So let's see how is it sp3. Now let's say this is 2s orbital of your carbon which is having your 1 electron beta. This is
px orbital, let's say 2px orbital rather, that is also having a one electron. This is 2py orbital beta. Then here third, that is a 2pz orbital. So बच्चों, ये चारों ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे विल इंटरमिक्स टुगेदर. क्यों? क्योंकि इनमें एनर्जी डिफरेंस कम है. दैट्स व्हाई दे विल इंटरमिक्स टुगेदर टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, shape and size as well beta. Now the hybridization will be of sp3. Now beta, this s orbital 2px, 2py, 2pz, they are going to intermix to give you this sp3 hybridization here. So now this is giving you this sp3 hybridized orbital. जैसे बेटा हाइब्रिडाइजेशन में आपने पहले किया होगा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे. यहां 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं एक साथ, तो ये 4 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स देंगे. और कौन से हाइब्रिडाइज्ड? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. और यू नो दिस इज वन ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बेटा. दिस इज अनदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज अ फोर्थ वन बेटा. अब बच्चों, ये जो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन एंड ईच sp3 hybridized orbital here have 1 electron each. So बच्चों, now यही आपके different 4 sp3 hybridized orbitals which are directed in towards the ends of your regular tetrahedron. So beta, they are having your 1 electron each, as I have told you. तो इनके साथ, since we are discussing your methane, अब now जो आपके ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, that is 1s1, तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल बेटा. तो ये जो 4 s ऑर्बिटल्स हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स के, दे आर गोइंग टू ओवरलैप विद दीज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. और ये क्या दे देंगे बेटा? 4 सिग्मा बॉन्ड्स. क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहां ओवरलैप कर रहा है s ऑर्बिटल के साथ, 1s ऑर्बिटल के साथ. क्योंकि यहां sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ बेटा, which is also having a 1 electron. So they are going to overlap with each other to form the sigma bonds. अब बच्चों, ये क्या है? This is orbital overlap diagram of the methane. Now these are your 4 sp3 hybrid orbitals beta, which are directed towards the regular ends of the tetrahedron. Now these are the 4 hydrogen atoms beta. हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज 1s1. सो बेटा s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और s ऑर्बिटल क्या रहता है बेटा? स्फेरिकल रहता है. सो दिस इज हैविंग योर s ऑर्बिटल विच इज हैविंग योर 1 इलेक्ट्रॉन. सो बेटा दीज 4 s orbitals of these 4 hydrogen atoms, they will overlap with these sp3 hybridized orbitals beta, and they will give you this orbital overlap diagram beta of this methane. So here see, 2 electrons are here, 2 electrons are here, 2 electrons are here, and always remember one bond, sigma bond, is having your 2 electrons. So beta, this is the orbital overlap diagram of the methane. So beta, in the different way I have told you the concept of your orbital overlap beta here. Now bachcho, this is the central carbon atom of methane that is going to form the 4 bonds with these 4 hydrogen atoms, and these hydrogen atoms are directed towards the ends of regular tetrahedron here. See, and the bond angle here is 109 degrees 28 minutes है बेटा. राउंड ऑफ करके 0.5 कर दिया. पिछले लेक्चर में मैंने क्या कहा था कि 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो बेटा 0.5 मीन्स हाफ डिग्री इज देयर.
So 30, that is there, approximately equal to your approximately close to 28 minutes. So that's why that is written over here 0.5 degree beta. So 109.5 degrees. Now beta, we can explain the structure of the ethane in the similar way beta. This is a ethane here. Now each carbon atom is your sp3 hybridized. Always remember बेटा, हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? We just count the number of sigma bonds attached with this carbon atom, because these sigma bonds, they are formed by the overlap of the hybridized orbitals only. So बेटा, number of sigma bonds इस कार्बन के साथ कितने? 4, 1, 2, 3, 4. That's why it is your sp3 hybridized. Similarly here, this carbon is also your sp3 hybridized, क्योंकि there are the 4 sigma bonds. Now beta, let's say this is one carbon, this is another carbon of your this ethane, and ये क्या है बेटा आपके? These are the 4 sp3 hybridized orbital of each carbon. Now this sp3 hybridized orbital of this carbon and this sp3 hybridized orbital of this carbon beta, they will come close and they will overlap beta like this, and they will form the sigma bond. And these 3 sp3 hybridized orbital of this carbon beta and these 3, they are each having one electron again, and this sp3 hybridized orbital will overlap with the s orbital of the hydrogen. So these are the s orbitals of hydrogen beta, which are going to overlap with your this sp3 hybridized orbital and is going to form sigma bond. So यहां क्या बन गए बेटा आपके? 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, और उसी तरह यहां भी. So बेटा, here all 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 sigma bonds are getting formed. Now बेटा, just see sp3 hybridized orbitals हैं ये सारे के सारे बेटा, और they are going to overlap with the s orbital over here to form the sigma bonds. So this is the orbital overlap diagram of the ethane. Now sigma bond beta, again this is also sigma bond. Now so this is a ethane beta bonding form, we are writing like this. So this is a 2-dimensional structure over here. Expanded formula of ethane is this one beta. Now that is a sigma bond which is formed as a result of your overlap of your these sp3 hybridized orbital beta, and this is another sigma bond which is formed as a result of your overlap of your this sp3 hybridized orbital and s orbital of the hydrogen beta. So now beta, this is a ball and stick model of your this ethane. Clear? This is a carbon, this is a carbon, and these yellow ones, these are your hydrogen atoms beta, और ये क्या हैं? They are directed towards the ends of your regular tetrahedron beta. One is this one, one is this one, one is this one, one is this one beta. So this is a ball and stick model of your ethane. Next, let's take the case of ethene. Now this is the orbital overlap diagram of the ethene. Now here, if you see, in case of ethene beta, the carbon here is sp2 hybridized, because you know ethene is CH2 double bond CH2. तो इस कार्बन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो कितने बेटा? 3 हैं. दैट्स व्हाई इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो क्या रहेगी? sp2, और इसकी भी sp2 ही रहेगी. और सिंस इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 बेटा, तो इसका जो ज्योमेट्री रहेगी वो कैसी रहेगी? ट्रायगोनल प्लेनर. ऑलवेज रिमेंबर बेटा, जिस भी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उसका जो ज्योमेट्री रहेगी दैट विल बी योर ट्रायगोनल प्लेनर, और उसके साथ जो भी एटम्स अटैच्ड होंगे दे विल बी इन अ प्लेन. वो क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे. अब बच्चों, इस केस में इस कार्बन के
दो ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइज करके बच गया एक, एंड दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड। चलिए पहले, इससे पहले हम आगे जाएं, इसका ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम कैसे बना बेटा, लेट्स सी। दिस कार्बन हियर, बताया अभी आपको कि ये sp2 है, तो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये हुआ बेटा, और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसका ये हुआ, और तीसरा ये हुआ। और बच्चों ये कार्बन भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके भी तीन ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुए, एक ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा बेटा, और दे आर ऑल इन अ प्लेन। अब इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है इस कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ, और वो आपको क्या दे रहा है, सिग्मा बॉन्ड दे रहा है। अब बच्चों इस कार्बन के जो दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो बच गए, क्योंकि एक तो ओवरलैप कर गया यहां। अब क्या करेंगे, ये जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ वो ओवरलैप कर रहा है बेटा, एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली हियर दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, और उसी तरह बेटा यहां भी s ऑर्बिटल और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं आपके। एंड बेटा दिस हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स दे आर ऑल इन अ प्लेन। क्लियर। अब बच्चों जैसा कि अभी बताया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 है, तो वन इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दैट इज ऑफ p, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। सो ये जो ये वाला है बेटा, दिस इज ऑफ p ऑर्बिटल, दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर। और वो क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। सिमिलरली हियर बेटा दिस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन, एंड दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। एंड नाउ दे विल अंडरगो द साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब ये क्या करेंगे बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। क्लियर। और वो क्या बना देंगे, आपके पाई बॉन्ड। क्या बना देंगे, आपके पाई बॉन्ड बेटा। सो ये चीज हमने सभी डिस्कस कर लिया बेटा, ठीक है। और ये जो जैसे अभी बताया आपको कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं बेटा, दैट दे आर परपेंडिकुलर टू द 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन अ प्लेन, और वो क्या करेंगे, दे विल अंडरगो द साइड वाइज ओवरलैपिंग टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। नाउ let's take the case of ethyne beta. Ethyne, you know, this is CH triple bond CH beta. Now if you see here this carbon at the bottom here, this is having your one sigma bond here and one sigma bond between this carbon and this carbon beta, and two are the pi bonds. हमेशा याद रखें बेटा, दो एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो दैट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। दो हैं तो एक सिग्मा है एक पाई है, अगर तीन है तो एक सिग्मा है और दो पाई है बेटा। इज दैट क्लियर। पाई बॉन्ड कभी भी बेटा, सिंगल बॉन्ड कभी भी पाई बॉन्ड नहीं होगा दो एटम्स के बीच में, ऑलवेज रिमेंबर। सो बच्चों नाउ दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। क्यों, क्योंकि यहां क्या है, दो ही सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं बेटा। क्लियर, दैट इज sp hybridized. This is also your sp hybridized. So in ethyne beta, the carbon atom is sp hybridized. sp hybridization जो है इनकी, तो ये क्या देंगे, दो ही sp hybridized ऑर्बिटल देंगे, एंड दे विल ओरिएंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 होगा, 180 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल होगा बेटा, ठीक है। तभी इनके बीच में रिपल्शन क्या होंगी, मिनिमम होगी, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या है, मैक्सिमम दूर हैं। अब चलिए ये तो था बेटा। अब मान लिया ये कार्बन है, इस दिस इज वन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर, यू नो बेटा, दिस इज वन। अगर आप यहां देखें जहां कर्सर चल रहा है बेटा, जस्ट सी द कर्सर, मोमेंट ऑफ द कर्सर, दिस इज वन sp, ये स्मॉल लोब एंड दिस बिग लोब, दैट इज वन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये दूसरा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बेटा, बिग लोब एंड दिस इज स्मॉल लोब बेटा। नाउ दे आर your 2 sp hybridized orbital of this carbon beta. Similarly here this carbon is also having your 2 sp hybridized orbital. Clear? So यहां sp hybridized orbital की जो है ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, और आपको क्या दे रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड दे देगा यहां। और यहां इस sp hybridized orbital की जो ओवरलैपिंग हो रही है किसके साथ हो रही है, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ हो रही है। और सिमिलरली यहां भी बेटा sp और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, और आपको ये सिग्मा बॉन्ड देने। अब बेटा ये तो था कि ये जो आपके हाइड्रोजन कार्बन और ये कार्बन और हाइड्रोजन दे आर इन अ प्लेन, और यू नो ये क्या है,
एक लाइन में ही है, जस्ट यू कैन से, क्योंकि इसका जो ज्योमेट्री है बेटा दैट इज लीनियर। क्लियर। सो अब जो बचे दो p ऑर्बिटल्स, क्लियर, अब वो क्या है, मान लिया दिस इज वन p ऑर्बिटल, दिस वन p ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एंड दिस अनदर p ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन बेटा, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, एज वेल एज टू दीज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बेटा। तो उसी तरह बेटा इस कार्बन के भी ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और वो क्या हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ऐसे ऑर्बिटल जो एक दूसरे के पैरेलल हैं बेटा, अब यहां ये वाला p ऑर्बिटल और ये वाला p ऑर्बिटल दे विल अंडरगो द साइड वाइज ओवरलैपिंग, और ये दूसरे जो p ऑर्बिटल्स हैं विच आर परपेंडिकुलर टू दिस वन बेटा, क्लियर, वो भी क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो अंडरगो द साइड वाइज ओवरलैप बेटा। सो ये ओवरलैप किस तरह का हो जाएगा, लेट्स से my hands, these are the two carbon atoms, let's say. Now this is sigma bond and this is unhybridized p orbital of this carbon beta, or this is the unhybridized orbital of your this carbon. Is that clear? And they are going to overlap sidewise like this. Clear beta? Now उसी तरह अभी इस कार्बन के और इस कार्बन का एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और है बेटा, and let's say ये इस तरह लें अगर हम, लाइक दैट, ये पकड़ने में मुश्किल हो रहा है, लाइक दैट बेटा। अब ये वाले साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं और ये वाले अगर आप देखें ये और ये मींस ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, एज वेल एज टू द दिस सिग्मा बॉन्ड बेटा। सो ये क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है और पीछे भी है। इज दैट क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल बी देयर ऑफ दिस इथाइन बेटा। क्लियर। और हम कह सकते हैं बेटा, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, आई मस्ट से ये जो आपका कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, लेट्स से दिस रिफल इज द सिग्मा बॉन्ड। इज दैट क्लियर? और ये जो आपका ये वाला बन गया दिस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां फ्रंट में भी है, बैक में भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है। सो बेटा वी कैन से जो आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज ऑल अराउंड योर दिस कार्बन सिग्मा बॉन्ड। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। सो बच्चों, नाउ वट एवर आई हैव टोल्ड यू बेटा, that is all written over here. There are the two p orbitals on each carbon which are unhybridized. Now beta, these unhybridized orbitals are perpendicular to each other and undergoes the sidewise overlapping to form the pi bond. I think beta this must be clear now. Now bachcho, next is some characteristic features of pi bond. बच्चों, pi bond किन्हीं भी दो कार्बन के एटम्स के बीच में अगर है बेटा, तो जो भी एटम्स उन कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हैं दे ऑल विल बी इन अ प्लेन। ये पहले भी मैंने कहा बेटा आपको। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर सपोज इन दो कार्बन के बीच में क्या है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सो देन इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो sp2 है तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्रायगोनल प्लेनर रहेगी बेटा। सो मींस ऑल द एटम्स अटैच्ड टू दीज कार्बन्स दे विल ऑल बी इन अ प्लेन। सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे बच्चों। नाउ दूसरा है बेटा कि जो आपके p ऑर्बिटल्स हैं पाई बॉन्ड के, वो क्या हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन दे आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन बेटा ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? They are perpendicular. You know, this is a plane. Clear? Let's say this carbon, hydrogen, and carbon and hydrogen atom, they are all in a plane, and these p orbitals, they are perpendicular to this plane, beta. Now, always remember, beta, ये जो rotation है around this carbon and carbon double bond, beta, that is not possible. That is restricted. You know, beta, let's say अगेन बेटा, ये जो मेरे दो हाथ हैं ये क्या है, लेट्स से कार्बन एटम्स हैं, और ये पेंसिल्स जो मैंने ले रखी हैं दीज आर द लेट्स से पाई बॉन्ड। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं बच्चों, इज इट पॉसिबल? नो, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल until and unless this bond will not be broken. You know, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है आपकी रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड।
सो बच्चों, नेक्स्ट जो है, जो आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई बॉन्ड्स की, अभी इथाइन के केस में मैंने काफी डिटेल में किया बेटा। तो ये क्या है, जो भी आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा, दैट लाई above the plane. Just see this structure here beta. Now pi electron density is here above the plane and below the plane. Is that clear? Of the bonding atoms beta. अब बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स के इस तरह होने की वजह से जो आपके जो भी अटैकिंग रीजेंट है उनको इजिली अटैक कर सकते हैं. सो वट एवर हैव रिटन, लेट्स सी द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये कैन से या इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट लाइज एवर एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स. नंबर वन. नेक्स्ट क्या कहा मैंने कि ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऊपर और नीचे, एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, इज दैट क्लियर? ये क्या करता है, दिस अलाउज द पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, बीइंग इजिली अवेलेबल टू द अटैकिंग reagents. सो बच्चों, तभी ये जो आपके पाई बॉन्ड्स हैं, दे आर योर मोस्ट रिएक्टिव साइट्स इन द मॉलिक्यूल. कैसे मॉलिक्यूल? जिनमें आपके ये मल्टीपल बॉन्ड्स हैं. नाउ इफेक्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ. बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा, जस्ट टू अफेक्ट द योर दिस बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ. लेट्स सी हाउ. अब बच्चों, जो आपकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ है किसी भी बॉन्ड की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. आपके क्या है, कार्बन में एस और पी ऑर्बिटल्स ही हैं. So beta, always remember s orbital, they are having your small size as compared to that of your p orbitals. So beta, let's take the case of your bond length. बच्चों, बॉन्ड लेंथ, अगर ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं अगर इनका साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी ज्यादा होगी बेटा. अगर आपके जो ऑर्बिटल्स हैं, इज दैट क्लियर, जो आपके हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, इज दैट क्लियर, या ऑर्बिटल का साइज अगर छोटा है तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी. सिंपल. अब बेटा ये जो आपके पी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि दे आर योर लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एस ऑर्बिटल ऑफ द सेम शेल. बेटा शेल सेम होनी चाहिए, मैंने अभी नहीं बोला था. शेल क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. ऐसा ना हो एक शेल को आप दूसरे शेल के ऑर्बिटल से कंपेयर करें. अब बेटा, तो अभी मैंने क्या कहा बेटा कि जो आपका p ऑर्बिटल है दैट इज कंपैरेटिवली लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर s ऑर्बिटल ऑफ द सेम शेल. तो बेटा जब हम sp3 से sp2 पे जाएंगे तो व्हाट विल हैपन टू द p कैरेक्टर हियर? तो p कैरेक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज. p कैरेक्टर अगर आप यहां देखें वो कितना है? दैट इज 3/4. इज दैट क्लियर? 3/4 मीन्स 75%. मतलब 3 आपके p ऑर्बिटल्स हैं और टोटल हैं 4 बेटा, तो 3/4 इंटू 100, तो परसेंटेज कितनी आ गई? 75%. इज दैट क्लियर? और इसमें कितना हो गया बेटा? 2/3. ठीक है, तो 2/3 इंटू 100 कितना हो गया? 66.6 अप्रोक्सीमेटली बेटा. एंड देन sp के केस में कितना हो गया बेटा? these are 2 टोटल, तो p1 1/2 इंटू 100 दैट इज 50%. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? जो आपकी परसेंटेज है p ऑर्बिटल की दैट इज गोइंग टू डिक्रीज बेटा. तो साइज ऑफ द ऑर्बिटल भी क्या करेगा? क्या करेगा? उसी ऑर्डर में बेटा डिक्रीज करेगा. इज दैट क्लियर? सो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का. इज दैट क्लियर? देन योर sp2, देन योर sp. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ बच्चों, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि बेटा जितना साइज ऑर्बिटल का बड़ा होगा बॉन्ड उतना ही बड़ा होगा. मीन्स बिगर द ऑर्बिटल लार्जर इज द बॉन्ड लेंथ. तो बच्चों अगर हमारे को डिफरेंट कार्बन
जिनकी आपकी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट है, उनके बीच की अगर बॉन्ड लेंथ हमें कंपेयर करनी हो तो क्या रहेगा बेटा, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, तो इनके बीच में इनके बीच, सो बेटा इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर दिस वन, क्योंकि ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है और दिस इज ऑल्सो योर sp हाइब्रिडाइज्ड, तो इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पी करेक्टर क्या है, कम है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स व्हाई ये ऑर्बिटल्स क्या होंगे, छोटे होंगे बेटा, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, छोटी होगी। इज दैट क्लियर? सो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी रहेगी बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के बीच की, और फिर sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बीच की, और फिर सबसे कम किसकी रहेगी बेटा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगी। ना बेटा ये बॉन्ड लेंथ भी दे रखी है 154 पिकोमीटर्स, दिस इज 148 पिकोमीटर्स एंड देन दिस इज 138 पिकोमीटर्स। अब बेटा ये जो आपकी साइड वाइज ओवरलैप जो रहता है बेटा 2p ऑर्बिटल्स का, जो आपके क्या बनाते हैं, आपके पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, ये क्या करते हैं, जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो दो कार्बन एटम्स को ये क्या करेंगे, दे विल ब्रिंग देम क्लोजर। इज दैट क्लियर? और जब ये क्लोज आते हैं तो दे आर अंडरगोइंग सम ओवरलैप, तो आपका क्या होगा, जो आपका जो सिंगल बॉन्ड है बेटा, एक्चुअली जो सिंगल बॉन्ड है वहां क्या साइड वाइज ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलाउंग ही आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन पाई बॉन्ड्स के केस में आपके साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हो रही है। इस देखिए पी ऑर्बिटल्स की, सो क्या कर रहे हैं, दो कार्बन एटम्स को क्लोज ला रहे हैं बेटा, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ योर सिंगल बॉन्ड। सो वी मस्ट से जो आपकी सिंगल बॉन्ड लेंथ है दैट इज लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर डबल बॉन्ड, एंड देन ट्रिपल बॉन्ड के केस में और भी कम होगी बेटा। सो इट्स रिटन ओवर हियर बेटा कि एक सिंगल बॉन्ड जो है दैट इज लॉन्गर एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड विच इन टर्न इज लॉन्गर देन द ट्रिपल बॉन्ड। सो बेटा नाउ लेट्स से दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेटा, हियर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज देयर। अगर हम इनकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें बेटा तो दैट इज 154 पिकोमीटर्स, 148 पिकोमीटर्स एंड देन इट्स 138 पिकोमीटर्स in case of your this carbon-carbon triple bond. Is that clear? So means अगर इसको हम समराइज करें बेटा कि जो आपकी with the multiplication of the bonds between the carbon-carbon atoms, is that clear? आपकी जो bond length है that is going to decrease. Hope students this is clear. अब बच्चों ये जो आपका अभी तो हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की बात की, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विद द s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन बेटा, क्योंकि हमने क्या देखना है अब C और H के बीच के बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं बेटा। यहां क्या है, ये जो आपका CH बॉन्ड जो बन रहा है वो क्या किसके ओवरलैप की वजह से बनेगा, कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो सकता है, या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो सकता है, या फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, जिनकी ओवरलैपिंग किसके साथ होगी, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ होगी बेटा। अब बेटा जैसे अभी हमने कहा भी कि जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से जब हम sp2 में जाते हैं और फिर sp में जाते हैं, देन साइज ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना बेटा। उसी तरह बेटा जो बॉन्ड लेंथ है CH बॉन्ड की वो भी कम होगी, किस किस के बीच में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी एज कंपेयर टू द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड दैट ऑफ द s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन के बीच की। क्लियर? सो हम कह सकते हैं कि बेटा एज द साइज ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डिक्रीजेस द लेंथ ऑफ द CH बॉन्ड डिक्रीजेस। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। ना बच्चों यहां देखें, यहां कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और H है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, अभी बात की हमने। देन योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ जो है आपका, देन योर सबसे कम बॉन्ड लेंथ जो होगी आपकी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगी। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। Now, if you compare
The bond length here, its bond length is a 111 picometers, then it's a 110 picometers beta, and then it's a 107.9 picometers. All the difference is small, but your bond length is going to decrease. ओके बेटा, अगर हम समराइज करें, हमने अभी इतनी डिस्कशन की, लेकिन इसको अगर मैं समराइज करूं तो क्या है? लार्जर द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, लार्जर इज द बॉन्ड लेंथ. और बेटा हमने बात की कि s ऑर्बिटल छोटा है एज कंपेयर टू द p ऑर्बिटल ऑफ द सेम सेल. तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जितना ज्यादा p करैक्टर होगा, क्लियर, उसका साइज उतना ही बड़ा होगा. और उस क्लियर, अब वो करैक्टर किस में ज्यादा है बेटा? sp3 में ज्यादा है p करैक्टर ज्यादा देन योर sp2 और sp में. तो बेटा ऐसे कार्बन एटम्स जब किसी भी दूसरे एटम या जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का साइज क्या है? बड़ा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से कंपैरिजन में बेटा. जो आपका तभी क्या है बेटा, जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो सबसे कम है. क्लियर? क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ. बच्चों अब मान लिया हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, अगर मैं इसको कंपेयर करूं बॉन्ड लेंथ से बेटा, लेट्स से दिस इज सम बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स. क्लियर? नाउ दिस इज ऑल्सो द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स. क्लियर? ओके. नाउ अब ये क्या है? दो बॉन्ड्स हैं दो एटम्स के, दो एटम्स के बीच में. क्लियर? नाउ ये क्या बताना चाहता हूं बेटा, ये छोटा है ये बड़ा है, मीन्स ये छोटी बॉन्ड लेंथ है ये बड़ी है, बड़ी ज्यादा है बॉन्ड लेंथ. अब नाउ इफ आई वांट टू ब्रेक दिस वन, दिस कैन बी इजिली ब्रोकन बेटा, वेयरएज इफ आई वांट टू ब्रेक दिस वन, दिस कैन नॉट बी ब्रोकन. इज दैट क्लियर? सो आई मस्ट से जो स्ट्रेंथ है दैट इज मोर इन दिस केस. इज दैट क्लियर? सो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है आई मस्ट से दैट इज इनवर्सली रिलेटेड बेटा. इज दैट क्लियर? सो जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है बेटा दैट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. जैसा अभी मैंने कहा, क्या कहा बेटा, मीन्स स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ. लार्जर इज द बॉन्ड लेंथ बेटा, स्मॉलर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ. इज दैट क्लियर? सो बॉन्ड स्ट्रेंथ हियर इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ. क्लियर? सो मीन्स जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, मीन्स दैट बॉन्ड कैन बी इजिली ब्रोकन. So smaller the bond length, greater is the its strength बेटा. अब बच्चों ऐसे सिग्मा बॉन्ड जो आपके sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से बनते हैं, दे आर योर स्ट्रॉन्गेस्ट वन. और जो आपके ऐसे सिग्मा बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेटा, दे आर योर वीकेस्ट. अब क्यों है? क्योंकि बेटा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से जो आपके सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी. बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी. बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उनको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए. इज दैट क्लियर? सो उनकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या है बेटा? दैट इज मोर. इज दैट क्लियर? जबकि जो सिग्मा बॉन्ड आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से बन रहे हैं बेटा, क्लियर, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? उसकी कम होगी. बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो मींस दोज कैन बी इजिली ब्रोकन बेटा. तो उनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो क्या रहेगी? कम रहेगी. सो होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. ना बेटा लेट्स से दीज आर द डिफरेंट बॉन्ड्स. sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड है, देन योर sp3 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, और sp कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है,
लेट्स से वी हैव टू कंपेयर देयर बॉन्ड लेंथ्स। अभी बात की हमने कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बेटा, इसकी होगी। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो है आपकी 111 है बेटा, इसकी उससे कम होगी बेटा 110 पिकोमीटर्स, और इसकी सबसे कम होगी 107.9 पिकोमीटर्स। बेटा ये लर्न करने की जरूरत नहीं, बट यू नो कंसेप्ट यू मस्ट नो कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, दैट यू मस्ट नो। नाउ अगर बॉन्ड एंथैल्पी नाउ बेटा अगर बॉन्ड एंथैल्पी की हम बात करें तो बेटा इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दिस वन। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है ना, तो ये क्या होगी, कम होगी। सबसे कम इसकी होगी बेटा, फिर उसके ज़्यादा आपकी इसकी होगी, दैट इज ऑफ 443 किलो जूल, और सबसे ज़्यादा बेटा इसकी होगी, दैट इज ऑफ 507 किलो जूल पर मोल। ये तो बताने के लिए बेटा, बट यू मस्ट नो द कंसेप्ट कि आपका जो आपकी बॉन्ड लेंथ है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू योर बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? सो स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ मोर इज द बॉन्ड एंथैल्पी बेटा। सो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी है, इसकी है बेटा sp हाइब्रिडाइज कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है बेटा सबसे कम है, और बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। अब बच्चों बॉन्ड्स देखते हैं हम कार्बन कार्बन के बीच में। sp3 और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो सबसे ज्यादा होगी, फिर एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर sp2 और sp2 कार्बन के बीच में, और सबसे कम होगी किसके बीच में, sp और sp कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। नाउ बेटा जस्ट सी 154 पिकोमीटर्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, देन योर 148 पिकोमीटर्स एंड देन योर 138 पिकोमीटर्स। ठीक है, अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें बेटा तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी, और वो कितनी है 338 किलो जूल पर मोल, और इसकी कितनी है बेटा 383 किलो जूल पर मोल, और इसकी कितनी है 433 किलो जूल पर मोल। सो बेटा यहां भी क्लियर हो गया कि आपकी जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। इज दैट क्लियर? सो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी हुई बेटा, इसकी हुई। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बच्चों ये जो आपके सिग्मा बॉन्ड बनते हैं दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ योर एक्सेल ओवरलैपिंग। आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी ये काफी डिटेल में किया बेटा कि एक्सेल ओवरलैपिंग की वजह से आपका क्या रहता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो रहता है मैक्सिमम रहता है जब आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, दैट्स व्हाई द सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। लेकिन ना बेटा लेट्स से दीज आर द p ऑर्बिटल्स ऑफ द टू कार्बन एटम्स, तो ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे बेटा, तो साइड वाइज ओवरलैप का जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो रहती है वो कम रहती है। इसी वजह से ये जो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड दैट विल बी योर वीक बॉन्ड। इसी वजह से बेटा ये जो आपका पाई बॉन्ड बनेगा ड्यू टू द साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से, तो उसकी जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग रहती है वो कम रहती है, जिसकी वजह से ये जो पाई बॉन्ड रहता है ये वीक बॉन्ड रहता है। क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर बेटा पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड, और ये क्यों है, बिकॉज जो आपकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है पाई बॉन्ड के केस में वो कम रहती है। और वो क्यों रहती है कम, क्योंकि जो साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से ये बनता है। सो होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। अब सी बेटा यहां जो बॉन्ड स्ट्रेंथ दे रखी है इसकी सॉरी बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है पाई बॉन्ड की 251 किलो जूल पर मोल, और इसकी दे रखी है बेटा सिग्मा बॉन्ड की 348 किलो जूल पर मोल, और ये कार्बन कार्बन के बीच के सिग्मा बॉन्ड की दे रखी है। बट बेटा ये जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड बेटा। अभी ऑल्दो बेटा सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में जो आपका डबल बॉन्ड बन गया ना बेटा, क्लियर, दैट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो उससे भी स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और बच्चों अब अगर आप यहां देखें जो आपकी यहां बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की दैट इज ऑफ 599 किलो जूल पर मोल, और ट्रिपल बॉन्ड की दे रखी है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की दे रखी है 823 किलो जूल पर मोल। सो इट मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब बच्चों ये जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट ऑल्सो अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। क्लियर? अब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एस कैरेक्टर के ऊपर।
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जितना ज्यादा s करैक्टर होगा उतनी ही ज्यादा उस एटम की क्या रहेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। क्लियर? सो बेटा, मोर द s करैक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। बेटा इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? जैसे कि आप जानते हैं बेटा, जो s ऑर्बिटल हैं दे आर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। क्लियर? सो बेटा ये जो डिफरेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, sp हैं, sp2 हैं, sp3 हैं, उसमें जो s ऑर्बिटल या s करैक्टर की जो परसेंटेज है दैट इज डिफरेंट। अगर sp में देखें आप तो 50% s करैक्टर है बेटा, sp2 में देखें तो आपका कितना है, दैट इज 33.3% बेटा s करैक्टर। और आपका अगर sp3 में देखें तो 1/4 ना बेटा इंटू 100, तो दैट इज 25% इज देयर ओनली। क्लियर? सो बेटा जो आपका sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी क्योंकि उसका s करैक्टर ज्यादा है। क्लियर? अब बच्चों ये जो परसेंटेज है s करैक्टर की दैट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जैसे sp है, sp2 है, sp3 अभी भी कहा मैंने, लेकिन चलिए यहां स्लाइड में भी लिखा हुआ बेटा, सो बेटर टू मेक इट मोर क्लियर। अब यहां क्या है, जो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो है विच इज हैविंग योर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विद द 50% s करैक्टर। और ये क्यों है बेटा? क्योंकि दो ऑर्बिटल हैं, वन एस एंड वन पी है, तो वन एस है, एस करैक्टर कितना परसेंटेज है एस करैक्टर की बेटा? ना बेटा ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, एटम है, जिसमें क्या है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है विद 50% s करैक्टर बेटा, ठीक है, वो क्या रहेगा, दैट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों रहेगा? क्योंकि उसके s करैक्टर ज्यादा है। कितना है? 50% है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है उसमें जो s करैक्टर है बेटा वो कितना है? 33.3% है। क्लियर? सो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी बेटा? कम रहेगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है उससे कम रहेगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सबसे कम किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी? जिसमें क्या है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है, ठीक है, जिसमें s करैक्टर कितना है? 25% है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी? सबसे कम रहेगी। सो नाउ लेट्स से टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेटा, कार्बन विद sp, कार्बन विद sp2 एंड देन कार्बन विद योर sp3। अगर आप यहां देखें परसेंटाइल s करैक्टर कितना है इसमें बेटा? 50% है। इसमें कितना है? 33.3% है। अब आई थिंक पता लग ही गया होगा कैसे निकाला ये बेटा। टोटल कितने हैं बेटा? p ऑर्बिटल्स 3 है, s है 1, तो 1 टोटल दैट इज 3 इंटू 100, तो परसेंटेज आ गई इसकी, दैट इज 33.3%। देन हियर 25%। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? मोर द s करैक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी इस कार्बन की विच इज sp हाइब्रिडाइज्ड, देन योर दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेटा, एंड देन दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सो बेटा दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन। सो बेटा हाइब्रिडाइजेशन से हमने डिफरेंट फैक्टर्स डिस्कस किए बेटा, लाइक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? Hope students this is all clear. So beta, more the s character, more is the electronegativity of the carbon atom. So thank you. Have a nice day. Hope students you have enjoyed the today's lecture.